Now today we are going to start with chapter number 3, animals, food and feeding habits. ठीक है, इसमें हम टाइप्स ऑफ एनिमल्स और उनकी फीडिंग हैबिट्स जो होती है एनिमल्स की, फूड चेन और प्रोटेक्शन एंड केयर ऑफ एनिमल्स, इसके बारे में पढ़ेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. ऑल लिविंग बीइंग्स नीड फूड टू लिव एंड ग्रो. Food gives us energy to do everyday activities. Different animals have different food and feeding habits. According to their different habits, they are divided into different groups. देखो, हर एक एनिमल्स की नीड होती है फूड की. अकॉर्डिंग टू देयर हैबिट हमने अलग अलग एनिमल्स को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करा है. ठीक है, वो हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे. Animals are the living things. They need food to stay alive. Food helps them to grow, gives them energy for various activities. Food protects them from disease. Animals eat different kinds of food. They eat plants or other animals as food. Animals spend a good part of their lives moving in a search of food or running away from predators. These are main reasons for this. Food is not only available nearby. Animals are the source of food for other many animals are the source of food for other animals. ठीक है, देखो एनिमल्स को फूड की जरूरत पड़ती है और वो जीते भी इससे हैं बाय ईटिंग अ फूड. ठीक है, अगर उन्हें फूड नहीं मिलेगा दे विल नॉट बी अलाइव. ठीक है, इसलिए वो क्या करते हैं, अपना प्रेडेटर ढूंढते हैं या फिर एक प्लेस से दूसरी प्लेस मूव करते हैं इन द सर्च ऑफ फूड. ठीक है, या दूसरे एनिमल्स को मार के उनका फ्लैश खाते हैं. ठीक है, now let us go to jungle safari and observe how animals eat to live. Depending upon their food habits, animals are grouped into 3 categories. उनकी फूड हैबिट्स पे हमने एनिमल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करा है. एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर फूड हैबिट. फर्स्ट इज हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स. ठीक है, हर्बीवोर्स एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स. Carnivores, animals that eat flesh of other animals. Animals that eat both plants and flesh of other animals. Herbivores जो plants खाते हैं, carnivores जो flesh खाते हैं. ठीक है, and omnivores जो both plants and animals दोनों खाते हैं. ठीक है, now first we will start with herbivores. Herbivores कौन से animals होते हैं? All plant eating animals are called herbivorous animal or herbivores. Domestic animals like sheep, cow, buffalo, goat, rabbit and horse are herbivorous animals. We give them grass, hay and other plant products to eat. Sheep हो गया, काउ हो गया, बफेलो हो गया, गोट हो गया, ये सारे क्या है, हर्बीवोर्स एनिमल. इनको हम खाने के लिए ग्रास देते हैं, हे देते हैं और कुछ प्लांट्स के प्रोडक्ट देते हैं. वाइल्ड एनिमल्स लाइक डियर, जेब्रा, राइनोसोर, जिराफ, कंगारू, एलिफेंट, हिपोपोटामस आर हर्बीवोरस एनिमल. कुछ वाइल्ड एनिमल्स भी जैसे आपके डियर हो गया, जेब्रा हो गया, हिपोपोटामस हो गया, ये भी क्या होता है, ये प्लांट्स खाते हैं. They move from one place to other place in search of food and water. ये एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाते हैं in the search of food and water. Now carnivores. All flesh-eating animals are carnivorous animals or carnivores. The tiger, lion, leopard, wolf, fox are some animals that eat flesh of other animals. Some carnivorous animals like tiger, fox, lion, leopard, wolf, after something to catch it, they prey and kill it. देखो, जैसा आपका टाइगर, लॉयन हो गया, फॉक्स हो गया, ये क्या खाते हैं, लेपर्ड हो गया, ये फ्लैश खाते हैं अदर एनिमल की. कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे कि आपका लॉयन, फॉक्स, ये क्या करते हैं, अपने प्रे को कैच करते हैं और फिर उसको मार के खाते हैं. दे रन फास्ट एंड किल देयर प्रे विद द पावरफुल पॉन्स. प्रे इज द एनिमल हंटेड फॉर फूड बाय कार्निवोर्स. ये बहुत तेज भागते हैं और अपने जो पॉज होते हैं उनसे क्या करते हैं, एनिमल्स को मार देते हैं और उनको फिर खाते हैं. ठीक है, omnivores, animals that eat both plants and flesh of animals are called omnivorous animals or omnivores. Bear, crow, squirrel, rat are some of the omnivorous animals. जैसे आपका bear हो गया, crow हो गया, squirrel हो गया, ये कौन से animals होते हैं, omnivorous. Human being also eat plants and animals. They are called omnivorous. Human beings भी human being होते हैं जो animals जैसे meat खाते हैं, fish खाते हैं, egg खाते हैं, वो भी क्या है, omnivorous है. Now feeding habits. Feeding habits of the animals depends upon the type of food it eats. Let's learn the feeding habits of some animals. ठीक है, अलग अलग feeding habits होती है हर animals की. ठीक है, हम कुछ feeding habits पढ़ेंगे. First is plant eaters like cow, buffalo, horses have sharp front teeth to cut the grass. They also have strong, broad, grinding teeth
एट द बैक टू च्यू द फूड, ठीक है, उनके आगे के जो टीथ होते हैं वो शार्प होते हैं, जैसे काऊ हो गया आपका, बफेलो हो गया, हॉर्सेज हो गया, ठीक है, जिससे वो क्या करते हैं अपना जो ग्रास उसको कट करते हैं। और जो उनके पीछे वाले टीथ होते हैं बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, ग्राइंडिंग होते हैं, ब्रॉड होते हैं, जिससे वो उसको चबाते हैं, च्यू करते हैं। Plant eaters first swallow their food without chewing it. They bring the food back to their mouth and chew it slowly. पहले उनके जो swallow mouth होता है, तो पहले वो खाने को अंदर ले जाता है स्टोर करने में, और थोड़ी देर बाद उसको वापस लेके आता है, फिर धीरे धीरे च्यू करके खाते हैं। This process is known as chewing the cud. Some plant eaters are called ruminants, ठीक है, और जो कुछ प्लांट ईटर्स होते हैं उनको हम ruminants भी कहते हैं, काउ वो ruminant है, ठीक है। Meat eaters such as lion, tiger, cheetah, dog have sharp, long, pointed teeth to tear the flesh, ठीक है, लॉयन हो गया, टाइगर हो गया, चीता हो गया, इनके शार्प पॉइंटेड टीथ, लॉन्ग पॉइंटेड टीथ होते हैं, जिससे ये फ्लैश को टीयर करते हैं। They also have a strong grinding teeth at the back of their mouth to chew their flesh and crack bones. इनके जो पीछे के टीथ होते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ होते हैं, जिससे वो फ्लैश को तोड़ते हैं, च्यू करते हैं। Animals such as rabbit, rats, squirrels nibble, take small bites of fruits and seeds very fast. This is called gawning. Rabbits हो गई, rats हो गए, squirrel हो गए, ठीक है, इनके जो टीथ होते हैं उनके स्मॉल बाइट्स लेते हैं खाने की, उसे हम ग्रॉनिंग कहते हैं। They have set of very long and sharp front teeth. These animals are called rodents. इनके sharp long teeth होते हैं, इनके rabbits के, rats के, इन्हें हम rodents कहते हैं। Animals such as crocodile, snake do not use their teeth to bite or chew the food. They use their teeth to hold the food and swallow it as a whole. These animals can open their mouth wide, and some other animals have unique feeding habits. जैसे crocodile और snake हो गए, इनके कोई टीथ नहीं होते बाइट करने के लिए, खाने को उगलते हैं, ठीक है, swallow करते हैं। Frog, lizard and chameleons have no teeth. They have long sticky tongue. The insect gets sucked to their टंग। फ्रॉग हो गया, लिजर्ड हो गया, इनके कोई टीथ नहीं होते, इनकी लॉन्ग टंग होती है, जिससे इंसेक्ट को क्या कर लेते हैं, उसको स्टक कर लेते हैं। कैट्स हैव पॉन्स दैट हेल्प देम टू चेज माइस सॉफ्टली एंड साइलेंटली। उनके पॉन्स होते हैं, वो धीरे धीरे जाके रैट को पकड़ लेती है और खा लेती है। अ लीच सक्स ब्लड फ्रॉम द बॉडीज ऑफ द एनिमल्स विद द हेल्प ऑफ इट्स सकर्स। देखो लीक बहुत हमारे बालों में भी हो जाते हैं, एनिमल्स पे भी हो जाती है, वो क्या करते हैं, ब्लड सक करते रहते हैं दूसरे एनिमल्स से। A giraffe has a long neck to reach the top of the tree. उसकी जो नेक होती है वो बहुत ही लॉन्ग होती है, जिससे वो आराम से ट्री पे पहुंच जाता है और पेड़ पे से वो खा लेता है। An elephant has a trunk which helps them to break off branches and leaves and push them into a mouth. It also uses trunks to suck water off. उसकी ट्रंक से क्या करता है, ट्रीज को तोड़ देता है, ब्रांचेस को और उसकी लीव्स को, और उसको खा लेता है, और अपनी ट्रंक में क्या करता है, पानी को स्टोर करके भी रखता है। Butterflies, grasshopper, honey bees are long sucking tubes to suck liquid food from plant. ये क्या करते हैं, बटरफ्लाई वगैरह लिक्विड फूड को प्लांट से सक कर लेते हैं, ठीक है, अंदर ले लेते हैं। Mosquitoes have a long needle like sucking tube called proboscis to suck the blood from animals. इनकी लॉन्ग नीडल लाइक सकिंग ट्यूब होती है इनके पास, मॉस्किटोज की होते हैं ना, जिससे देखा ना हमारे भी बैठते हैं तो हमारा खून चूस लेते हैं। Now, food chain. A food chain is a pathway that shows how energy passes between living things. Look at the following picture. ठीक है, ये पाथवे है, फूड चेन एक पाथवे होता है जो बताता है कि कैसे एनर्जी पास करती है इन द डिफरेंट लिविंग बीइंग्स, ठीक है। Here the grasshopper eat grass, the frog eats grasshopper, and the snake eat frog. So the energy from grass first goes to grasshopper. पहले एनर्जी ग्रास से कहाँ गई है, ग्रास हॉपर, और फिर ग्रास हॉपर को किसने खाया, फ्रॉग ने, ठीक है, देन द फ्रॉग एंड फाइनली द स्नेक। इट इज लाइक अ चेन एंड हैंस कॉल्ड फूड चेन। फिर फ्रॉग को किसने खाया, स्नेक। ये क्या बन गई, एक तरीके की हमारी चेन बन गई, और इसको ही हम कहते हैं फूड चेन, ठीक है। राइट अ सिंगल वर्ड्स फॉर ईच। देखो मैं आपको चैप्टर पर आ रही हूँ, जब आप चैप्टर पढ़ लेंगे, जब आप उसको रीड करेंगे आपको खुद समझ में आ जाएगा, या आपको खुद करनी है एक्टिविटी अपने आप। नाउ प्रोटेक्शन एंड केयर ऑफ एनिमल्स। हमें एनिमल्स को कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए और कैसे उनकी केयर करनी चाहिए। There are different kinds of animal in the world. Some are wild and live in the forest, while some are domestic. They help and live with us. We should protect these animals and take care of them and their environment. देखो अलग अलग तरीके एनिमल्स होते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं वाइल्ड एनिमल्स होते हैं जो फॉरेस्ट में रहते हैं, कुछ डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, ठीक है। ये हमें अलग अलग चीज़ें प्रोवाइड करते हैं,
हमें इनकी केयर करनी चाहिए और इनके इन्वायरमेंट की भी, ठीक है। देखा है लोग अब क्या कर रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं जिससे एनिमल्स का होम छिन जाता है और वो अब सड़क पे आ जाते हैं। We should not disturb the animal living in the forest. We should not destroy their homes by cutting trees. We should not hunt them as very few animals are left. हमें हंट भी नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत ही कम एनिमल्स बचे हैं और उनका जो फॉरेस्ट है उसको भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, ठीक है। हमें फॉरेस्ट को क्लीन अप नहीं करना चाहिए क्योंकि जो उनका होम है वो उनसे छिन जाता है, ठीक है। डोमेस्टिक एनिमल्स आर वेरी यूजफुल टू अस. वी मेक देम वर्क फॉर अस एंड हेल्प्स अस इन मेनी वे. We should take care of them, give them wholesome of food to eat and clean water to drink. Their shelter should be clean. When they fell sick, we should take them to veterinary doctor. The veterinary doctor treats the sick animal. हमें एनिमल्स की केयर करनी चाहिए. अगर वो बीमार हो जाता है तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए और जो डॉक्टर उनको ट्रीट करता है एनिमल्स को उसको कहते हैं हम वेटेरियन कहते हैं, ठीक है। शूट द एनिमल्स विद अ कैमरा नॉट विद अ गन. हमें एनिमल्स को शूट करना चाहिए विद अ कैमरा नॉट विद अ गन क्योंकि वैसे ही एनिमल्स बहुत ही कम बचे हैं क्योंकि लोगों ने क्या करा है अपने जैसे कुछ एनिमल्स उनको मार देते हैं फ्लैश के लिए, कुछ एनिमल्स मार देते हैं जैसे किसी को वूल निकालनी हो शीप से उन्हें मार देते हैं, ठीक है। और जिनको लेदर चाहिए होता है, ठीक है। अलग अलग तरीके से लोग क्या कर रहे हैं एनिमल्स को हंट कर रहे हैं, इसलिए हमें उन्हें शूट करना चाहिए कैमरे से नॉट विद अ gun, ठीक है। Hope you understood the chapter. That's all for today. Thank you.